أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ رب سونے فرمایا کہ سورہ حشر دی اس نامی آیت پاک چ کہ جنہوں وہ نفس دے لالچ بچا لیا گیا اور وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اللہ سونے نے سمندر نو کوزے وچ بند کرتا، سبحان اللہ۔ اسی واسطے قرآن کریم دے دنیا دی کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتے، جڑے یہ آفاقی قانون عالمگیر قانون موجود ہے اور انقلابی نفع بخش حرکی اور فطری وہ قرآن کریم دا پروگرام ہے۔ بہرحال رب سونا فرماندا ہے کہ میں جنہوں نفس دی لالچ بچا لا، یعنی میں ہی بچا سکنا تے تو سبق یہ ملے کہ سانو چاہیے اسی سونے رب نو راضی کریے، اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کریے اور راتاں دی تنہائی اچ اللہ دے حضور روئیے، گڑ گڑائیے، معافیاں منگیے تاکہ رب سونا سانو ساڑے نفس دی لالچ کڑ دے، خواہشات نفسانی جو کڑ لے، کیونکہ یہی بربادی دا پروگرام ہے۔ اللہ اور بندے درمیان یہی سب تو بڑا حجاب ہے، پھر وجود ہے، پھر دنیا ہے، یہ ساری خلق ہے، اور اس تو بعد ماسو اللہ ہے، انسان دا علم ہے، عقل ہے، اور باطن دے اندر جنہیں پروگرام ہے سارے اللہ رب العزت چونکہ اپنی ذات دے انوارات نال یہ سارا ظہور فرمایا، یہ سارے تنزلات و تعینات اور ظہورات جڑے ہیں اللہ رب العزت دے ارادہ دے مطابق ہے۔ اپنی محبت نال اللہ نے پروگرام شروع کیتا، رب سنے چاہے کہ میں پہچانیا جاواں تے مخلوق پیدا کیتی، اور باطن دا اندر جو کچھ ہے کوئی بھی آدمی باطن چ داخل ہو کے دیکھ سکتا، اللہ والے دس دے آئے نے اور دس دے رہندے نے، جو کچھ بھی عالم خلق دے اندر اللہ سونا ظہور فرمانا چاہتا ہے وہ سب دا پروگرام جڑا عالم مثال دے اندر پہلا اللہ ظاہر فرماتا ہے، پیچھے بھی ظہور ہولے ہندے عالم مثال تک آتے، عالم مثال تو بعد پھر ایسا عالم ظاہر دیتے، اس سلسلہ چلتا، اور سارا پروگرام لوح محفوظ سے لکھیا ہوا اور ارادہ الہی دے مطابق سارا ایک نظام چل رہا، ظاہر دا بھی باطن دا بھی۔ رب سونے دی مرضی تو بغیر اتنے کوئی پتہ بھی نہیں گر سکتا، اور یہ بدبخت لوگ ہیں جڑے مزید عصر حاضر دے اندر بڑے عجیب و غریب شیطانی روحانیت نو فروغ دیندے نے، کدے ٹیلی پیتھی دا نام لے کے، کدے ہپناٹزم دا، کدے مسمرزم دا، کدے یوگا ریکیاں دا، اور یہ ساڈے اندر بھی ایجنٹ انہاں پیدا کرتے ہیں اور پچھوں انہاں نو مال فیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی حکمت نال لوکاں نو رب تو دور کر دے، دنیا دی محبت الجھاؤندے نے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے حاصل کر سکتا ہے، انسان دے اندر کچھ ہوندا ہے سب کچھ ہی، لیکن جب تک رب سونا نہ چاہے یہ ظہور نہیں ہوندا۔ اسی واسطے انسان دے اندر اٹھی ہر خواہش یا زبانی منگدا یا انسان دے ذہن دی گہرائیاں جو کچھ انسان نے اپلیکیشناں لائیاں منفی مثبت اس کم تک کردی رہندیاں، وہ ویوز لہراں پھیلدی رہندیاں، کائنات دیاں کاسمیک انرجیاں جڑیاں کائنات دیاں ساریاں دی تابعدار ہے، ویسا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہوندا ادوں ہی ہے جدوں رب سونا چاہے، اور انہاں دے کہن دا نہیں ہے۔ اسی واسطے سارے بے خدا پروگرام ہے، باخدا نہیں ہے، باخدا پروگرام تو اسلامی روحانیت ہے، اسلامی علم تصوف ہے جڑا سچے اللہ والیاں دتا ہے، اور قرآن و سنت دی جڑی روح ہے، اور یہ سارے غیر قرآنی پروگرام ہیں، سارے شیطانی پروگرام ہیں۔ بہرحال
अल्लाह सोहना फरमाउंदा कि मैं ही जिन्हों नफस की लालचों बचा लवां, जिन्हों नफस के चुंगल चो मैं छुड़वावां, वो ही फलाह पाउण वाले ने। वो सारियां फलाहां दीनी, दुनियावी, ज़ाहरी, बातनी, इनफरादी, इज्तमाही, बैन अक़वामी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और दीगर उलूम दियां सारियां फलाहां जड़ियां, और फिर आखिरी फलाह जड़ी कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई और हुज़ूरी खुदा जल्ला शानहू तक रसाई, वो फिर ही मिलनी है कि इंसान नफस के चुंगल चो निकले। और नफस के चुंगल जो निकलेगा अपने रब सोने को पहचान लेगा और इश्क़ मौला रंगीन हो जाएगा, हुज़ूर कल्ब की नेमत हासिल कर लेगा, फनाफिज जिक्र और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल कर लेगा, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल कर लेगा, तो अपने आप नूं इस दुनिया के मेले विचों लभ के तलाश करके ये गवाच जाता है, ये नफ्स नूं गवा दिंदा है, तो फिर इलाही मौला दा मुसाफिर बनेगा अल्लाह सुन दे कानून के मुताबिक तौबा करके या गैर मुसलमान ते ईमान ले आके। बहरहाल जदों भी इंसान इस राह च आउंदा, ये नफ्स जिहड़ा असल फसाद की जड़ ये है, तो जब तक इंसान की ख्वाहिशात चों नहीं निकलता ये कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इंसान किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, नफ्स का इलाज ही ये है, और अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, मर्जी मौला के मुताबिक करे, सिर तो लैके पैरों तक इरादा इलाही बन जाए, मर्जी मौला बन जाए, ख्वाहिश मौला बन जाए। और जिस मकसद वास्ते रब ने इन्हें दुनिया में भेजे, ये कायनात निज़ाम या इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, यह एक मकसद है इरादा इलाही दे विच। लेकिन चूंकि इंसान को इरादा इख्तियार की नेमत दी, जन्नात में देती, अगर यह इरादा इख्तियार अपने रब से कुर्बान नहीं करता और इरादा इख्तियार दुनिया के पासे ला दिंदा, शैतान के पिछे लग जाता, नफस की पैरवी करता, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जे अपना इरादा इख्तियार अपने अल्लाह दे कुर्बान कर देगा और दुनिया भी इसबाब व अरबाब चो निकल गए और तमाम तर मामले अपने खुदा दे सुपुर्द कर देगा, कायनात हो खुद सुपुर्दगी की बादशाह हासिल कर लेगा, तो फिर ही राह मौला दा मुसाफिर बनेगा और तलाशे मौला च निकलेगा। लेकिन पहले अपने आप को तलाश करना पैना, फिर अपने मन च डुबेगा। जिवें इकबाल फरमाउंदे ने, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो असल चीज़ जिहड़ी है ये नफ्स है। जब तक इंसान इस नफ्स चो नहीं निकलता, इश्क मौला की नेमत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह हासिल नहीं होंदे। इश्क ही है जिहदे बारे इकबाल फरमाउंदे, इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमान को बेकरां समझा था मैं। इश्क ही है जो पलक चप्पण तो पहला रब की बारगाह च लै जाता है। जब तक नेमत हासिल नहीं होती इंसान, और इसकी जिंदगी का मकसद भी यही है, इन्हें पैदा ही इसे वास्ते किया है, ला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। बहरहाल नफ्स चो निकलेगा तो फिर गल बनेगी। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गोशा नशीनी ये है कि तू लोगों के हजूम दे विच दाखिल हो जाए, मगर अपने बातन नूं लोगों की मज़ामत तो महफूज रखें, अपने नफ्स नूं गुनाहां तो अलहदा रखें, और तुहाडे नफ्स का ताल्लुक जिहड़ा वो अल्लाह सोने दे नाल रहे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल की। आप फरमाते ने कि मज़ा फेर है, गोशा नशीनी ये है कि तू लोगों के विच भी रवे, लेकिन तेन हजूर कल्ब, हजूर मौला, हजूर कल्ब की नेमत हासिल होवे, ध्याने मौला दी, वसले मौला की नेमत हासिल होवे कि जिहड़ी ये मखलूक दे हजूम तेरे अंदरों खो ना सके, और तेरा यह हजूर ताल्लुक, ध्याने मौला, वसले मौला दी याददाश्त दी कैफियत तेरे को खो ना सके। दूसरी है कि तेनू कदे भी नफ्स के पिछे ना जान दे, किसी नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करना दे। तीजी तेरा बातनी ताल्लुक जिहड़ा तेरे कल्ब दा अल्लाह ना जुड़े, लेकिन तां ही जुड़ेगा अगर किसी अल्लाह वाले को तौहीद दी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करेगा, अल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाली। तो इसे रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी लिखते हैं, एक शख्स ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने, उन्होंने पूछा कि मेरे वास्ते गोशा नशीनी जिहड़ी है इख्तियार करना कदों बेहतर है। आपने फरमाया कि जदों तैनू अपने नफस तो
अलैदगी की ताकत होवे कि जब तक तू अपने नफ्स दे विचों नहीं निकलदा, ख्वाहिशात नफसानी विचों नहीं निकलदा, क्योंकि यही चीज़ां जिहड़ियां इंसान नूं तबाह बर्बाद करदियां, ख्वाहिशात है, लज्जात है, शहवात है, माल है, मशहूरी है, कुर्सी है, दुनिया की तलब, हर यही बर्बाद करदी है। आपने फरमाया जब तक तू इहदे चों नहीं निकलदा उस वक्त तक गोशा नशीनी इख्तियार करना तेरे वास्ते सही नहीं। तो जो अंदर हुजरे विच भी बह के तेरा ज़हन बाहर फिरदा रहे तो की फायदा तेरा हुजरे जाण दा। जिवें आम कई गाफल है नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का खलोते अल्लाह सोहणे दे हजूर होंदे ने, लेकिन उनका ज़हन रूह दिल बाहर फिर रहे होंदे ने। ये कैसी नमाज है? उसकी वजह है कि उन्होंने नमाज नीति नहीं। नमाज वो ही है जो इंसान कहता दिलों कि मुंह तरफ काबा शरीफ, दिल तरफ अल्लाह दे और सजदा अल्लाह ताला नूं ते वास्ते अल्लाह ताला दे। तो उस तो बाद नीयत पूरी या जुबानी कहता या इंसान दिल विच ही कहता, तो फिर अल्लाह जो उसका कल्ब का ध्यान पूरा अल्लाह की तरफ हो जाता है, फिर वो कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा। हुण फिर अगले मामले फिर जो नमाज का प्रोग्राम वो सारा प्रोग्राम रब ने दसिया। तो जिहड़ा शख्स नमाज के कलमात के तर्जमे नहीं जानता, उसकी गहराई नहीं जानता, तो वह किवें वो रूह हासिल कर सकता है जिहड़ी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना की महराज है, यानी रब सोने को पहुँचा दी है नमाज। तो यह तो अल्लाह का बंदा है तो मसीह तो निकल के इत्थे तक नहीं जाता है, इन्हें रब को की जाना। ये नमाज सच्चे अल्लाह वाले को लभनी है। ये नमाज इश्क को दसणगे, जिवें हदीसे पाक च हज़रत सुल्तान बाहू इस हदीस को अक्सर कोड करते हैं कि जिन्हें ज़ारी नमाज नहीं पढ़ी उसकी बात नहीं कबूल नहीं, जिहदी बात नहीं पढ़ी उसकी ज़ारी कबूल नहीं। ज़ारी नमाज है 5 वक्त की, बातनी नमाज है कलबी है नमाज इश्क, वो सच्चे अल्लाह वाले दसदे ने। जो दोए पढ़ेगा ब्याक वक्त फिर इनू कैफियत हो, ये तां ही लभणगियां जे इंसान नफस के चुंगल चों निकलेगा। असल जिहड़ी फसाद की जड़ है नफ्से उम्मारा, तो जब तक इंसान नफ्से उम्मारा ना जिहाद अकबर नहीं करता और इनू फना नहीं करता है, यदि हर ख्वाहिश चों नहीं निकलता, उस वक्त तक फनाए कल्ब हासिल नहीं हो। जब तक फनाए कल्ब नहीं हासिल हो अगला मामला हासिल नहीं होएगा इनू कदे भी। इत्याने मौला का दुरुस्त नहीं होएगा, यादाश्त की नेमत इनू मैसर ही नहीं होगी, दवाम जिक्र हजूर की नेमत इनू मिलेगी नहीं, हजूर कल्ब दियाँ नेमतां इनू मैसर नहीं आउणगियां, अल्लाह दी नाफरमानियां तो बच नहीं सकता, सोबत मौला माइयत मौला कुर्ब मौला इनू मिल ही नहीं सकता। और ये चीज़ां तां ही लभणियां कि जदों इंसान इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना होएगा, क्योंकि इहदी मुहब्बत हुब्बन लिल्लाह सच्ची तां होनी है। जिवें कुरान हकीम च दस्सिया कि हबीब ने लोगों को दस दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुहाडे नाल फिर मुहब्बत करेगा, तुहानू अपना महबूब बना लेगा, फिर तुसीं अब तो मुकामे अबदियत ते फायज हो जाओगे और ये दुनिया जिहड़ी है ये तुहाडी गुलाम बनाती जाऊगी। जिवें इकबाल एक जगह गल फरमा दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। इकबाल फरमा दे तू मेरे नबी की गुलामी इख्तियार तो करके वेख, तो सब कुछ तेरा गुलाम कर दिता जाएगा, तेन कुन दियां नेमतां दित्तियां जाणगियां। और उस तो अलावा ऐसे ऐसे इनाम बातन दे अंदर जिहड़े इंसान नाकाबिले बयान है। तेरी हैरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, आलम हैरत ही डुबया रहेगा तू। बहरहाल तो लेकिन जब तक इंसान नफ्स चो नफ्स परस्तां दे चुंगल चो नहीं निकलता या इन्हां वास्ते जीने तो नहीं हटता। मोमिन का हुक्म यह है कि ना तू नफ्स वास्ते जीना, नफ्स परस्तां वास्ते जीना, जीना ते अल्लाह रसूल वास्ते जीना। जिवें इकबाल फरमांदे मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरा हर अमल फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक वास्ते है कि ताकि अल्लाह सोना खुश हो जाए। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे मज़ा तो तब है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ऐ वो बंदा इस दुनिया च रहा सी लेकिन इसदा जीना मरना सिर्फ मेरे वास्ते सी, हर वेले मेरे नाल ही कलम जुड़िया रहिंदा सी। ते जदों इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करदा, आपदी इताअत करदा, अपना सच्ची मुहब्बत कलबन करदा, क्योंकि इत्तबाए मुस्तफ़ा ही फितरी मुजाहिदा आया, मसनून मुजाहिदा आया।
ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं हैगा। मसनून मुजाहिदा इत्तबाए रसूल ही है और यही फितरी मुजाहिदा और यही रब नूं पसंद है। तां ही रब सुने जगह जगह कुरान च बार बार दस्सिया आतिउल्लाह आतिउर रसूल कि मेरी इताअत करो, मेरे हबीब दी इताअत करो। जब तक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नहीं करता, आपकी इत्तबा च फना नहीं हुंदा। और ये फितरी मुजाहिदा रियाजत है, उस वक्त तक कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। और जदों इंसान इस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा तो फिर कुरान सुन्नत दे हर हुक्म दी रूह के मुताबिक अमल करने के काबिल हो जाएगा। फिर कलमन हर वेले अल्लाह का जिक्र करूँ, सच्चे अल्लाह वालियां को जिक्र हासिल करके फिर वो कैफियत ये अंदर आ जाएगी। जिवें हुज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर ते कुल जहान भुलावन ते दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावन। तो फिर इन्हां अंदरों कैफियत पैदा होएगी। फिर ला इलाहा नफी इस बात सही हो जाएगी। जिवें मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि दो जहान भराए दिल थी, खबर ना रहे हवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। सारे मसले हल हो जाते हैं। तुसीं रब सोहणे नाल यारी ला के तो देखो, रब दा हो के तो देखो, रब दी राह चल के तो देखो। ते लेकिन ये लभड़ी सच्चे अल्लाह वालियां कोलों, जदों सच्चे अल्लाह वालियां दे गुलाम होवोगे। जिवें इकबाल तां ही फरमाते निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो जब तक भी ना ये लोगों ने एवें ना समझो, इन्होंने जो फ़क्र की नेमत हासिल है। जिवें इकबाल फरमाते कि मकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया न हो तो क्या कही है। इस वास्ते सारी कायनात तो बेनियाज हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वो बादशाहत मिल जाती है। इस वास्ते कदे दर बदर धक्के खाते नहीं फिरते। आ दो नंबर फिरते हुलिये बना के, जिन्होंने के बारे इकबाल फरमाते कि लिबासे खिजर में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। और इस वास्ते इन्होंने सियासतदाना पिछे, बादशाहों पिछे, इन्होंने उमरा पिछे ते जागीरदारां दे पिछे, दुनिया के कुत्तियां दे पिछे उन्होंने दरां बूहां सलाम करते फिरते हैं। सच्चे अल्लाह वाले शान शान नहीं है, क्योंकि तो रब दे बूहे ते रब दा बूहा छड्ड के इन्हां दे बूहे जावे दुनिया के कुत्तियां दे। कदे कोई अल्लाह वाले दुनिया के बूहे नहीं जाऊगा। वो अपने रब की माइये च रहेगा, रब की सोबत च रहेगा। वो वास्ते रब काफ़ी है, किसी शय की लोड़ नहीं। रब हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन ये नफ्स कुत्ता है, ये नफ्स के गुलाम होंगे ने। इस वास्ते इन्होंने बूहां फिरते हैं, कदे कोई सियासतदाना दे, कदे किसी मैंबरां दे, कदे किसी वजीर को, कदे किसी गवर्नर को, कदे किसी चौधरी को, कदे किसी जगीरदार को, कदे किसी मिल ओनर को है दीन के नाम ना ड्रामे सारे करते हैं। सच्चे अल्लाह वाले काम नहीं करते कतई। उन्होंने वास्ते एको ही नारा अल्लाह बस, बाकी हवस किसी की कोई जरूरत नहीं। रब सोना कुरान च नहीं फरमाता कि मैं तुहाडे वास्ते काफ़ी नहीं है। इन्हां को तो महदूद है दुनिया, जिहदे बारे कुरान करीम से रब सोने फरमाया को बताओ दुनिया कलील, ते रब को तो खजाने लामहदूद है। तो फिर ऐसे रब नूं छड्ड के किवें दुनिया कुत्ती पिछे जावे, कदे नहीं जाता कोई भी दरवेश आदमी। लेकिन सच्चे अल्लाह वाली खिदमत करेगा, उन्होंने को तौहीदी नूर नस्बत की नेमत हासिल करेगा और उन्होंने अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराएगा, फिर एक्सैप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल करेगा। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक चलेगा तो फिर कामयाब होएगा। तेरा अल्लाह वाले ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर वे निगाहे मौला च उन्होंने कोल बैठो ताकि तुसी भी अल्लाह की निगाह च आ जाओ। इस वास्ते हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद की शान च कहते हैं कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां दे संग लाई। एक कैफियत वो पैरां पैदा हो जाती है। तो मैं गलियां का रूड़ा कूड़ा तो महल चढ़ाया साइयां, ये सब अल्लाह वालियां दा है। और फिर हमेशा अपने तमाम मामलात अपने रब नाल ही करता है। तां ही मियाँ साहब एक जगह दुआ कितनी प्यारी फरमाउंदे ने कि रहमत दा पी पा खुदाया ते बाग सुक्का कर हरिया ते बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। तो रब सोने को फिर मंगते, रब नाल ही ताल्लुक होंदा, इन्हां को नहीं जाके मंगते दुनिया के कुत्तियां को। हाँ जी, ये सारे आरजी है, इन्हां दी कुर्सियां आरजी है, इन्हां दा माल आरजी है, खुद आरजी है, सारे फानी ने। तो फानी ना कादी है, तो अल्लाह बाकी रहने वाला, बाकी ना यारी लाओ तो नफे पाओ। तो ये सारे घटिया और नीच किस्म के लोग दुनिया के कुत्ते है। इन्होंने बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। अज जिन्हें हुण किन्ने फड़ के जेलों च फिरदे ने, किन्ने बड़े बड़े सियासतदान
जिन्हां दा लहजा खुदाई सीगा, रब बने हुए सीगे फिरौन अपने वक्त दे बड़े बड़े आ जिन्ने भी हुण है ने, जरदारी मरदारी नवाज शरीफ चोर आ जिहड़े लुट के इस मुल्क नूं खा गए। लेकिन मेरे अल्लाह ने एक बल्ले वाला लिया के उत्ते बहाता जिहड़ा फैंटी लाया इन्हां लोकां नूं, ताकि अगला निज़ाम दुरुस्त करिए, खिलाफत का निज़ाम ले आइए। सदारत का निज़ाम आएगा, फिर उस तो बाद खिलाफत आएगा, फिर आस्ता आस्ता दुनिया की इमामत और क़यादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। निशात सानिया इस्लाम की शुरू हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान दे उत्ते इस्लाम का निज़ाम। अगला दौर उम्मत मुसलमान का, अगला दौर कुरान का, अगला दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। इस वास्ते सारे कुछ नहीं कर सकते, लालण जोर जिन्ना मर्जी है। बहरहाल तो इन्होंने लोगों ने यारी लाने की, जिवें मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नीचां दी शनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया ते किकर दे अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा ही जख्म आया। इन्हां को जाके सवाए गंद तो होर कुछ भी नहीं हैगा। इन्हां लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन जिहड़ी रूहानी कैफियत है इन्हां आमा लोगों को बयान नहीं करना। जो मियाँ साहब फरमाते हैं कि खासा की गल आमा अगे तो नहीं जरूरत करनी, तो मिठी कीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे धरनी। इन्हां लोगों को की कदर है? ये लोग इस कैफियत नहीं पा सकते, ना समझ सकते हैं। ये रब सोना, जदों इंसान रब सोने नाल यारी ला लैंदा है और सच्चे दिलों इश्क नगर दा वासी हो जाता है, तो फिर इन्हूं नेमतां मुयसर होंदियां ने, वरना इन्हां नेमतां मुयसर नहीं आउंदियां हैगियां। अगर कोई सच्चे दिल ना अल्लाह राह चलना चाहता है, फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो जाए और सच्चे बादशाह मुतकी परहेजगार दुनिया तो बेजार उलमाए हक की सोबत इख्तियार करे और अपने अंदर डूब जाए। जिवें इकबाल फरमाते, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो फिर राही मौला का मुसाफिर बने, अपने आप को पहले तलाश करे, फिर तलाशे मौला विच निकले और फिर जाते मौला च फना हो गए। अल्लाह वाले दसे तरीके के मुताबिक, कुरान सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अपनी रूह को अपने जिस्म चो कढ़ के, इस पिंजरे चो कढ़ के बातन च सफ़र करके रब की बारगाह तक पहुँचे। तो जदों ये रब की बारगाह जाएगा तो फिर इन्हूं सारियां नेमतां हासिल होणगियां। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया, हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनूं फरमाया गया, गौसे आज़म गुनाहगारां नूं फजलो मेहरबानी की खुशखबरी सुना दे जाके, और मगरूरां नूं मेरे इंसाफ और बदले दी। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे पाक रब सोने फरमाउंदे, इहदा मतलब यह है कि गुनाहगारां नूं दस्सिया, गुनाहगारों तौबा कर लो, मैं साहिब फजल अजीम है, जिते चाहवां अपना फजल करना। जो सच्चे दिल नाल तौबा कर लैंदा, मैं उहदे सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा और उहदे गुनाहां नूं नेकियां बनाउंदा। चाहे आसमानां तक ही गुनाह क्यों ना ढेर लगे होण, एक करी सच्चे दिल नाल तौबा तर नसूह करो, मैं सारे माफ़ कर देंगा, बल्कि गुनाह नेकियां बना के इनाम देंगा और फिर तुहानूं अपने राह दा मुसाफिर बना देंगा, अपनी बारगाह तक रसाई भी देंगा अगर सच्चे दिलों आओगे। और जेड़े दुनिया के माल मशहूरी कुर्सी दे विच डुबे ने, दुनिया के वसाइल ते काबज आरजी तौर पर होए, कोशिश तो बेचारे बड़ी करते हैं, लेकिन कई कोशिश करते करते किन्ने फिरौन, नमरूद, शद्दाद, महदाद, यजीद लद गए ने, लेकिन हुण भी लगे हुए ने। किन्नियां शैतानी कुवतां लगियां हुई ने, खास तौर पर यहूदी कुवतां जिहड़ियां की कुछ कर रही ने। हैरानगी हुंदी है कि दुनिया सारे ते कब्जा कर ली है, सारे वसाइल ते कब्जा कर ली है, सारी माइशत ते कब्जा कर ली है। मैं तुसी एक हद तक दा कर सकते हो, लेकिन हवा ते भी कब्जा करके दिखाओ ना, या सूरज ते भी कब्जा करके दिखाओ, इन्हां बदलों ते भी कब्जा करके दिखाओ। मसनूई आरजी दा बना सकते हो, लेकिन पूरा प्रोग्राम जिहड़ा है इहो सियारे सितारे बना के दिखाओ, इहो जिहियां कहकशावां बना के दिखाओ, और बहुत जिहड़ियां मौजूद है इहो जिहे ब्लैक होल बना के दिखाओ। और ये अल्लाह सुन दा प्रोग्राम है पूरी नज़ाम कायनात के अंदर चल रहा, इन्हां ते कब्जा करके दिखाओ। इंसान के अंदर जो कुछ मौजूद है वो यार तो छड्डो, सारे तुसीं कब्जा करो, किसी अल्लाह वाले नूं कब्जा करके दिखा दिओ। तुसीं किसी अल्लाह वाले ना डरा सकते हो, ना झुका सकते हो, ना खरीद सकते हो। तारीख भरी पई है, इन्हां अल्लाह वाले ने गर्दनां लुहातियां, नेज़े चढ़ गए, पोश लुहाते, जेलां कट्टियां, तकलीफां कट्टियां, लेकिन दावत अल्लाह ही दी दित्ती।
ये तुहाडे कोल डरदे क्यों कि मेरे रब ने इन्हां नूं सर्टिफिकेट देता दुनिया जी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ते तुसीं इन्हां दा की कर सकदे हो? कुछ भी नहीं कर सकदे। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने दे इस पैगाम नूं समझिए और पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आम कर दिए, कुर अर्ज़ दे हर इंसान तक पहुँचा दिए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और ये काम सिर्फ खुदा की रजा वास्ते करिए, ना अपने नफ्स वास्ते करिए, ना तालिबान दुनिया वास्ते करिए, ना फिरका परस्तां वास्ते करिए, ना फिरकियां वाले, ना निक्की निक्कियां फिरकियां विच टोलियां जिहड़ियां निकलियां ना वास्ते ना। इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिए, आइमा अरबा दी तालीमात दे नाल रहिए, अल्लाह वालियां दी तालीमात दे मुताबिक चलिए और सच्चे अल्लाह वाले सच्चे उलमाए हक हजूर इमाम अहमद रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हजूर शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और हजूर मुजाहिद मिल्लत अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह वर्गे लोगों के ये वो सच्चे अल्लाह वाले ने, सच्चे उलमाए हक ने। इन्हें तालीमात के मुताबिक चलिए। आ जिहड़े नेहरू गांधी की पूजा करने वाले अखंड भारत वाले नाल रले हुए ने, ये मुल्ला नहीं है। इन्हां दे बारे इकबाल ने भी आख्या सीगा ये फितनागर लोग आ सारे। इकबाल की शायरी इकबाल ने दस दिता सारा। इन्हां लोगों ही झूठे नबी पैदा किए, मिर्ज़े कादियानी हर एक बनना तो नबी उन्हें आप से बेचारे ने तकदीर नाल लिख के, लेकिन रौला पै गया। तो ये सारे वो ही लोग हैं, अज भी उन्होंने काम कर रहे हैं, एजेंट है उन्होंने लोगों के शैतानी कुव्वतां दे। बहरहाल साई दी अज सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पैगाम को समझिए और अपने नफ्स के चुंगल चो निकल जाइए ताकि सानू सारियां फलावां जिन्नियां भी है ये हासिल हो जान। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कम इल्म कमज़ोर आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपने प्यारे हबीब की अतबा दे विच फना होने की तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा और सही नफ़ी उसबात अता फरमा, कुर अर्ज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।